Hello students, I am Divya Kashyap from Success Series Education. Today I will conduct a quiz of MCQs from class 10th Science chapter 8, that is how do organisms reproduce. So what I'm going to do is I will share a question, give you 4 options. You can make guesses in the live chat and after 10 seconds I will give you the answer and discuss it. But before starting, I would like to tell you that we have lot of free content for students of class 10th. We have compiled all the links in a free PDF. Please download the PDF from the link given in the description box below this video. You can prepare for board exams with the help of this content, that too free of cost. One thing I would like to request you that you can hit the bell icon below the video to get notification regarding the next upload on Success Series Education. Also, students should follow us on social media platforms like Twitter, Instagram and Facebook for quizzes and other interesting stuff related to science. So let's start with the quiz. So the first question is, in Rhizopus, tubular structure bearing sporangia at their tips are called, options देख लेते हैं. A. Filaments, B. Rhizoids, C. Roots, D. Hypha. And your time starts now. Time is up and the correct option is option D. अब देखिए राइजोपस में आपको बोला था कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है विच बियर्स स्पोरेंजिया एट देयर टिप्स. तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए राइजोपस क्या है. राइजोपस एक फंगस होती है, राइट, विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. इसकी जो बॉडी होती है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ हाइफा, राइजोइड्स, स्टोलेंस एंड स्पोरेंजियोफोर्स. तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है. इसकी जो रूट्स है उनको हम क्या बुलाते हैं, राइजोइड्स, राइट. यहाँ पे जो इनकी एक कनेक्टिंग हॉरिजॉन्टल स्टेम है दिस इज कॉल्ड एज स्टोलन. यहाँ से राइज होते हैं हाइफास, राइट. जो ये आप कह सकते हो ये जो हाइफा है जो ऊपर की तरफ ग्रो हो रहे हैं इट इज कॉल्ड एज स्टोलन, दैट इज स्पेशल स्लेंडर हॉरिजॉन्टल हाइफा, राइट. और these are sporangiophores, straight unbranched tubular thread like hypha. और इसके ऊपर होता है स्पोरेंजिया और इसके अंदर होते हैं स्पोर्स, राइट. तो ये क्या है, दिस इज दी स्पोरेंजियोफोर्स. अगेन स्पोरेंजियोफोर्स हम इसको बोल तो रहे हैं बट इट इज ऑल्सो अ स्ट्रेट अनब्रांच्ड ट्यूबुलर थ्रेड लाइक हाइफा. तो यहाँ पे इसी की बात हो रही है, राइट. तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, हाइफा. Next question is, the ability of cell to divide into several cells during reproduction in Plasmodium is called A. Budding, B. Reproductive division, C. Multiple fission, D. Binary fission. And your time starts now. Time is up and the correct option is option C, that is multiple fission. आपको पता है कि fission का मतलब होता है टूटना, breakdown of one big cell into the other cell. Multiple fission का मतलब है कि एक सेल बहुत सारे सेल्स में ब्रेक हो रहा है. So this is what we see in case of plasmodium. तो प्लाज्मोडियम के अंदर एक सेल डिवाइड होके बहुत सारे सेल्स बनाता है, राइट. और इसको हम क्या बुलाते हैं, मल्टीपल फिशन. इसीलिए सी ऑप्शन एक करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ह्यूमन फीमेल्स एन इवेंट दैट रिफ्लेक्ट्स ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इज ए. ग्रोथ ऑफ बॉडी, बी. चेंज इन वॉइस, सी. चेंजेस इन हेयर पैटर्न, डी. menstruation. And your time starts now. Time is up and the correct option is option D, that is menstruation. जब menstrual flow
फीमेल के अंदर शुरू होता है तो उस समय रिप्रोडक्टिव फेज का इंडिकेशन है कि वो शुरू हो जाता है, बिकॉज इस टाइम फीमेल्स के अंदर एग प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the offsprings formed by sexual reproduction exhibit more variations because A. Sexual reproduction is a lengthy process. B. Genetic material comes from two parents of same species. C. Genetic material comes from two parents of different species. D. Genetic material comes from many parents. And your time starts now. Time is up and the correct option is option B. That is, genetic material comes from two parents of same species. आपको पता है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स मेल एज वेल एज फीमेल. आपको पता है मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और फिर वो ऑर्गन से क्या प्रोड्यूस होते हैं, गेमीट्स. मेल गेमीट जैसे आपको पता है कि स्पर्म है और फीमेल गेमीट क्या है, एग. तो जब ये फ्यूज करते हैं तो जेनेटिक मटेरियल दोनों पेरेंट्स से कंट्रीब्यूट होता है और ये दोनों पेरेंट्स सेम स्पीशीज के होते हैं. दैट इज द रीजन ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए फ्रूट, बी सीड, C zygote, D endosperm. And your time starts now. Time is up and the correct option is option D. अब यहाँ पे आपको बोला था कि ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस का मतलब जिसके अंदर 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो. 3 सेट्स ऑफ क्या हो, क्रोमोसोम्स. ट्रिप्लॉइड वही तो होता है, जैसे हैप्लॉइड होता है हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉइड होता है आपके पास डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, और ट्रिप्लॉइड होता है 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स. तो इनमें से कौन सा ट्रिप्लॉइड है, एंडोस्पर्म, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड ऑफ, और यू कैन से बाय द फ्यूजन ऑफ 3 सेल्स. आपको पता है कि पोलर न्यूक्लियाई इज फॉर्म्ड ऑफ 2 सेल्स. ठीक है, तो एक तो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गेमीट. जब ये आपस में फ्यूज करते हैं, इसको स्पेल कर देती हूँ मैं अच्छे से, मेल गेमीट, जब ये दोनों फ्यूज करते हैं आपस में तो ये 3 सेल्स फ्यूज करते हैं आपस में, राइट. तो इससे जो बनता है दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्म बिकॉज इट हैज ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेट ऑफ प्लेसेंटा इज टू A. Provide nutrition to embryo. B. Provide support to embryo. C. Provide minerals to zygote. D. None. And your time starts now. Time is up and the correct option is option A. जो प्लेसेंटा होता है वो न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है. इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो. ना ये सपोर्ट देता है ना ये मिनरल्स देता है, ये क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन. तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ टेम्पररी फॉर्म टिश्यू विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग zygote, or you can say nutrition to embryo. Next question is vegetative propagation refers to formation of new plants from A. Stem, roots, flowers. B. Stem, roots, leaves. C. Stem, flowers, fruit. D. Stem, leaves, flowers. And your time starts now. Time is up and the correct option is option B. जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है उसका मतलब है कि नए प्लांट्स बनाना बाय द यूज ऑफ प्लांट पार्ट्स. और वो पार्ट्स कौन से रहते हैं, स्टेम, रूट्स एंड लीव्स, नॉट फ्रूट एंड फ्लावर्स. उनसे हम नए प्लांट नहीं बनाते. उन किससे बनाते हैं, स्टेम, रूट्स और लीव्स से, जो कि मेन पार्ट्स होते हैं प्लांट के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following statements are false for sexual reproduction in flowering plants? A. It requires 2 types of gametes. B. Fertilization is compulsory. C. It always results in formation of zygote. D. Offsprings are clones. And your time starts now. आपको बताना है कि इन सब स्टेटमेंट में से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स पे कौन सा स्टेटमेंट गलत है.
टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। राइट, अब देखिए आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो वहां पे 2 टाइप ऑफ गेमीट्स भी होते हैं। आपको पता है मेल गेमीट, एग सेल, ये सब होते हैं। फर्टिलाइजेशन भी जरूरी होती है, जैसे कि आपको पता है मेल गेमीट एग सेल के साथ फ्यूज करता है और फिर पोलर न्यूक्लियाई एक और मेल गेमीट के साथ फ्यूज करता है, तो फर्टिलाइजेशन भी होती है। जाइगोट भी बनता है, जब एग सेल मेल गेमीट के साथ फ्यूज करता है तब जाइगोट बनता है, लेकिन ऑफस्प्रिंग्स क्लोन्स नहीं होते। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question is, in human males, the testes lie in the scrotum because it helps in A. Process of mating, B. Formation of testosterone, C. Easy transfer of gametes, D. Facilitates sperm production. And your time starts now. Time is up and the correct option is option D. Scrotum एक sac like structures होता है। स्क्रॉटम एक sac like structure होता है जिसमें टेस्टीज प्रेजेंट होती है। स्क्रॉटम टेस्टीज को 2 से 3 डिग्री सेल्सियस लेस देन बॉडी टेम्परेचर प्रोवाइड करता है ताकि उसमें स्पर्म प्रोडक्शन हो पाए। दैट इज द रीजन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question. The 2 oviducts in human female unite in a bag called A. Vagina, B. Uterus, C. Cervix, D. Fallopian tube. And your time starts now. And the correct option is option B. जो 2 ओविडक्ट्स होती है वो ह्यूमन फीमेल में यूनाइट करके एक बैग में खुलती है और उस बैग को हम क्या बोलते हैं? यूट्रस। जैसे आपको पता है इस तरह से फेलोपियन ट्यूब्स आती है, राइट, और वो किस बैग में ओपन होती है? दिस इज यूट्रस। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आउट ऑफ देम इज एसटीडी? ऑप्शंस देख लेते हैं। ए. कालाजार, B. Jaundice, C. Cholera, D. Syphilis. And your time starts now. काफी इजी क्वेश्चन है, आपको एसटीडी बताना है कि इनमें से कौन सी है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। जो हमारे पास सिफाइलिस है वो एसटीडी है, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। किससे होती है ये? इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। और होता क्या है इसके अंदर? जो फर्स्ट साइन होता है सिफाइलिस का वो ये होता है कि स्मॉल पेनलेस सोर अपीयर हो जाते हैं सेक्सुअल ऑर्गन्स पे, राइट, रेक्टम पे। और आप कह सकते हो कि जो ये सोर्स अपीयर होते हैं, राइट, इनकी वजह से रैशेस भी होने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रासेप्टिव? ए. कॉन्डम, बी. कॉपर टी, सी. डायफ्राम, डी. ऑल। And your time starts now. Time is up and the correct option is option D. देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस वो होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं, मतलब जो फ्यूजन ऑफ मेल गेमीट विद फीमेल गेमीट को नहीं होने देते। तो कॉन्डम, कॉपर टी, डायफ्राम, ये सब कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं। Next question is, which is the portion on which grafting is done and it provides roots? A. Stalk, B. Scion, C. Both A and B, D. None. And your time starts now. And the correct option is option A, that is stalk. देखिए अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में था ग्राफ्टिंग की, अगर हम बात करें तो ग्राफ्टिंग क्या होता है? एक हॉर्टिकल्चरल टेक्निक है ये, जहां पे टिश्यूज प्लांट्स के हम ज्वाइन कर देते हैं ताकि वो दोनों आपस में मिलकर कंटिन्यू ग्रो कर पाए इकट्ठे। तो जो अपर पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? स्काइन। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फिक्स पार्ट होता है इस तरीके से इसको तो हम बोलते हैं स्टॉक विच विल प्रोवाइड रूट्स। और जो यहाँ पे हम एक पार्ट लेके आते हैं बाहर से और यहाँ पे अटैच करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्काइन। और फिर उनको हम इस तरीके से टाई कर देते हैं।
सो दिस इज व्हाट इज ग्राफ्टिंग। तो यहां पे आपको पूछा गया था रूट्स वाला पार्ट, तो वो कौन सा होगा? स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर इन ह्यूमन फीमेल्स? ए cervix, B vagina, C uterus, D oviduct, and your time starts now. Time is up and the correct option is option D, that is oviduct. आपको पता है ओविडक्ट को हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, राइट? तो ये वो ट्यूब्स है, या आप कह सकते हो ये वो डक्ट है जहां पे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IUCD इज फॉर A vegetative propagation, B prevent miscarriage, C contraception, D increasing fertility chance. And your time starts now. Time is up and the correct option is option C. IUCD हमारे पास होता है intrauterine contraceptive device and it is used for contraception. Next question is bryophyllum reproduces through A buds, B leaf, C root, D stem, and your time starts now. आपको बताना है ब्रायोफाइलम कैसे रिप्रोड्यूस करता है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। देखिए जो ब्रायोफाइलम है, सबसे पहली बात तो उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब है प्लांट पार्ट से नया प्लांट बन सकता है। होती कैसे है? इट अकर्स थ्रू लीव्स। इट अकर्स थ्रू लीव्स। लीव्स पे एडवेंटिशियस बड्स ग्रो हो जाते हैं। लीव्स पे क्या होते हैं? एडवेंटिशियस बड्स। और फिर ये बड्स अराइज होते हैं मार्जिन ऑफ लीव्स से, राइट? और नया प्लांट बनाते हैं। अब यहां पे आपको ऑप्शन में बड्स भी था और लीफ भी था, बट अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप बड्स का नाम लिखेंगे, बिकॉज बड्स आर द डायरेक्ट structures which are giving rise to a new plant. Next question is the cell formed after fertilization is called A fetus, B zygote, C embryo, D none, and your time starts now. Time is up and the correct option is option B. पहला सेल जो फर्टिलाइजेशन मतलब मेल गेमीट और फीमेल गेमीट के फ्यूजन से बनता है उसको हम क्या बुलाते हैं? जाइगोट। और फिर जाइगोट जब ग्रोइंग स्टेज पे होता है उसको एम्ब्रियो बनाते हैं, और जब वो पूरा डेवलप हो जाता है और सिर्फ उसको डिलीवर करना होता है उसको हम फीटस बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्पर्म कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स? A1, B2, C3, D4, and your time starts now. Time is up and the correct option is C. That is, it consists of 3 parts. Sperm के 3 parts होते हैं, that is head, right? Head आ जाता है जिसके अंदर हमारा एक्रोसोम, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस आ जाता है। फिर उसके बाद मिडल पीस आ जाता है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह आ जाता है, और फिर हमारे पास आ जाती है टेल, राइट? जो कि आपको पता है फ्लैजिला से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the number of chromosomes in human sex cell is A23, B23 pairs, C46, D46 pairs, and your time starts now. Time is up and the correct option is option A. जो सेक्स सेल्स होते हैं वो हेप्लॉइड होते हैं, उनके अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं। सो दैट मीन्स ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इन ह्यूमंस इज A46, B44, C23, D22, and your time starts now.
एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। देखिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन डी हमने क्यों लिया है? देखिए ऑटोसोम्स होते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्रोमोसोम्स, दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्रोमोसोम्स, मीन्स दे आर द क्रोमोसोम्स जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स के अलावा प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हमारे अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है तो उसमें से जो एक पेयर है वो तो क्या है? सेक्स क्रोमोसोम। एक पेयर क्या है? सेक्स क्रोमोसोम। और 22 पेयर्स क्या है? दे आर ऑटोसोम्स, राइट। इसीलिए यहाँ पे 22 को मैंने करेक्ट ऑप्शन लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन मेल्स इज A2, B1, C3, D4 and your time starts now. Time is up and the correct option is, that is option A. It is 2. 2 sex chromosomes होते हैं males के अंदर, one is X and other is Y. Next question is, human sperm moves with A. cilia found in tail, B. flagella found in its tail, C. basal body, D. nucleosomes. And your time starts now. Time is up and the correct option is option B. जो human sperm होता है वो flagella की वजह से move कर पाता है। Next question is, type of placenta found in humans. A. disc-like, B. cotyledon type, C. zone-like, D. diffused. And your time starts now. And the correct option is option A. आपको पता है प्लेसेंटा क्या होता है? इट इज अ टेम्पररी फॉर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। या आप कह सकते हो ये मदर और ऑफस्प्रिंग को ज्वाइन करता है ताकि इसमें एंडोक्राइन सिक्रीशन प्रोवाइड कर सके, सिलेक्टिव एक्सचेंज ऑफ सॉल्युबल ब्लड बॉन्ड सब्सटेंसेस हो सके, राइट। तो ह्यूमंस के अंदर ये डिस्क शेप का होता है जिसके अंदर बेलाई अरेंज्ड होते हैं इन अ फॉर्म ऑफ सर्कुलर प्लेट, देयरफॉर जो कंप्लीट शेप बनती है दैट इज अ डिस्क लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्रोसोम इज मेड ऑफ A. ribosomes, B. mitochondria, C. centrioles, D. Golgi body. And your time starts now. And the correct option is option D. जो एक्रोसोम होता है वो गोल्जी बॉडी से बना होता है, राइट। एक्रोसोम में एक्चुअली प्रोटीन मैट्रिक्स कोर होता है, या आप कह सकते हो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि जो एग की वॉल होती है उसको लाइस एक्रोसोम से ही करते हैं एंड इट इज मेड अप ऑफ गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज प्रोड्यूसेस मेल सेक्स हार्मोन? A. retestis, B. seminiferous tubules, C. Leydig cells, D. scrotum. And your time starts now. Time is up and the correct option is option C. जो मेल सेक्स हार्मोन है वो किससे प्रोड्यूस होता है? लेडिक्स सेल से, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, राइट। सो दे प्रोड्यूस द मेल सेक्स हार्मोन विच इज कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरॉन। और टेस्टोस्टेरॉन का फंक्शन तो आपको पता ही है, स्पर्म प्रोडक्शन और डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स। सो आई थिंक यू गॉट इट, दैट C is the correct option. So with this we come to an end of the MCQ quiz. Thank you for watching the video. If you liked it, hit the like button, share the video and hit the bell icon for updates on next upload. So me, Divya Kashyap, signing off. We'll meet in the next video with new MCQ session. So till then, take care. Bye-bye.